I think Meenakshi madam is communicating with Usha madam. Hello. That's why Okay. she. Okay. Yes. Hello, Madhvi ma'am. Madam. Dabir madam will join, but she will speak later after the program. Okay. Start Madam has joined. Madhvi, start. Yeah. A very good morning to all the dear students and participants. I welcome you all to the online classes for BA Semester 1 Compulsory English jointly organized by Center for Literary Interaction and Creativity, MANOHARRAO KAMDI Mahavidyalaya Nagpur, RAJKUMAR KEWAL Ramani Kanya Mahavidyalaya Nagpur and DAYANAND ARYA Kanya Mahavidyalaya Nagpur. Today, we have among us Dr. Suman Keswani to conduct this session. Madam is working as an assistant professor in English at DRB Sindhu Mahavidyalaya Nagpur. She has done her BDS, MA in English, PhD also, and has qualified in NET. She is dentist by fate, teacher by profession, and poet by heart. She has publication entitled Reflections and Merge with the Muse to her credit. She has written for Vidarbha Plus, Times of India, and many more publications are to her credit. Madam will conduct the session on article and parts of speech. On behalf of the host institution, Madam, I extend a grand welcome to you and request you to conduct the session. Over to you, ma'am. Good morning, everyone. So it's a great delight for me to be here to teach this topic, articles and parts of speech. First of all, I would like to thank the organizing committee for giving me a chance to give this presentation. And to tell you, articles has been one of the closest topics. It is very close to my heart because I like to explain the details of articles, and it is always the very first lecture of my class. Every time I take the class, it is always the articles is the first lecture I take because I'm very much close to that topic. I like that topic very much. So thanks for giving me this topic. So now let me start. Just give me 1 minute. Just give me just. Is my screen visible? Yes, ma'am. It's visible. Okay. So the topic is articles and parts of speech. As you know, all of you must be knowing what is articles. Article is a word that comes before a noun to show whether it is specific or general. So for specific, we use the article the, and for general, we use a Suman or madam? an. Yes, Suman ma'am. madam, Yes, ma'am. a small request that try to deliver your presentation in bilingual, as there are Okay, ma'am. Hindi videos. Yes. Okay. So I hope that articles, जो ये topic है, this is a part of your syllabus, right? Articles. So for all those students who cannot understand English very well, so I'll try to be bilingual and teach you in both the languages, English as well as Hindi. Now, coming to the next slide, that is what is an article. So article is a word that comes before a noun to show whether it is specific or general. Okay, so articles, आपको पता होगा 3 होते हैं articles. कौन से होते हैं students? Do you know? A, and और last होता है the. तो 3 ही articles है, right? There are only 3 articles, but still there is so much confusion. इतना confusion है कि अभी भी students को, even स्टूडेंट्स क्या अभी भी काफी जो जिनकी पढ़ाई हो चुकी है, जो लोग पास आउट हो चुके हैं, उनको वो भी अभी तक मिस्टेक करते हैं आर्टिकल्स में. सो दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो इट इज क्वाइट अ प्रिविलेज फॉर मी दैट आई एम टीचिंग दिस टॉपिक. नाउ टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स. अगेन ऐसे जैसे कि मैंने बोला सिर्फ 3 ही आर्टिकल्स है, ए एंड द. अब उसमें भी 2 डिवीजन है, एक है इनडेफिनिट और एक है डेफिनिट. सो इनडेफिनिट में कौन से आते हैं? ए एंड एन. ओके, इनडेफिनिट का मतलब ये होता है कि जो हमको ठीक से पूरा नॉलेज नहीं दे रहा हो, समथिंग इज नॉट क्लियर, है ना, अनक्लियर. तो ए और एन ये ऐसे कुछ 2 शब्द हैं जो हमको क्लियरली नहीं बताते. जैसे ए मैन, तो हमको नहीं समझ में आता है कि एग्जैक्टली विच मैन, राइट?
So it is indefinite. बट जो डेफिनेट होता है इट गिव्स अस क्लियर कट इंफॉर्मेशन. अगर हम बोलते हैं द मैन तो उसका मतलब ही होता है कि हम पर्टिकुलर किसी इंसान की बात कर रहे हैं. ओके, सो द मैन या फिर द अम्ब्रेला मतलब कोई स्पेसिफिक अम्ब्रेला. बट अगर मैं बोलूं एन अम्ब्रेला तो उसका मतलब होता है कि एक अम्ब्रेला या कोई भी एक अम्ब्रेला. सो इसीलिए हम उसको इनडेफिनेट बोलते हैं. सो हैव यू अंडरस्टूड? इनडेफिनेट में होते हैं दो, ए एंड एन, और डेफिनेट में होता है सिर्फ एक, दैट इज द. ओके, नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसके वजह से सब प्रॉब्लम्स है, जिसके वजह से अभी तक बहुत लोगों को ये कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है कि आर्टिकल्स का यूज कैसे करना. इतना मालूम है कि वी हैव टू यूज आर्टिकल्स बिफोर नाउन. ओके, नाउन को ज्यादा हमको नॉलेज देता है कि नाउन स्पेसिफिक है, कोई पर्टिकुलर नाउन है, या फिर वो यानी इट इज जनरल, कुछ जनरल इंफॉर्मेशन देता है. तो अब इसके लिए कुछ रूल्स है. अब वो रूल क्या है जो अभी आपको पीपीटी में दिख रहा है. जो है वो इट इज प्लेस्ड बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड. कोई भी नाउन जो कॉन्सोनेंट साउंड से बिगिन हो रहा हो. साउंड हमने शब्द बोला, इसका मतलब ही है कि कुछ सुनना है, राइट? और हम क्या करते हैं, हम देखते हैं. This is the difference. So always remember कि while putting articles, you don't have to see the word. वो noun को का spelling नहीं देखना है. You have to listen to the sound. इसी की वजह से जो है ये बहुत सारे articles जो है वो सबके wrong होते हैं. Why? Because we try to see the spelling. For example, एक spelling है जो हमको बहुत confuse करता है. जैसे for example अगर मैं बोलूँ one, O-N-E-1, वन, तो हम क्या करते हैं, ओ एनी वन का ओ देखते हैं, राइट? स्टूडेंट्स, ये गलती हम लोग आज तक करते आ रहे थे. व्हाट वी डू, वी जस्ट सी द ओ ऑफ दैट ओ एनी वन एंड देन वी डिसाइड कि ओ है ना, मतलब वो वॉवेल है, एंड विच मीन्स दैट उसके सामने एंड वी हैव दिस कॉन्सेप्ट इनग्रेन्ड इन आवर माइंड्स कि वॉवेल के सामने एन लगता है, या वॉवेल के सामने, ऐसा हमारे दिमाग में है. बट लेट मी क्लियर दिस नाउ एंड हियर ओनली कि ऐसा नहीं है. स्पेलिंग जितना देखोगे उतना कंफ्यूजन होगा. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू लिसन टू द साउंड ऑफ दैट वर्ड. अभी कोई भी नाउन है उसका तुमको साउंड सुनना है. फॉर एग्जाम्पल अम्ब्रेला, अम्ब्रेला एक वर्ड है तो उसका जो बिगिनिंग कहाँ से हुआ, अ साउंड, राइट? सो यू हैव टू हियर दैट साउंड. नाउ अगर आप देखेंगे तो इंग्लिश अल्फाबेट जो है ना, it is just not based on sounds. Is there some division of two types of alphabets based on sounds? ऐसा कुछ है क्या इंग्लिश अल्फाबेट में? No, there is only one set, A to Z, all placed together. So English alphabet is based on spellings. It is not based on sounds. So now how to solve articles then? अगर हम spellings पे based है तो हम A to Z से लेके हम कैसे आर्टिकल सॉल्व करें? अगर सपोज कोई वर्ड ए से बिगिन हो रहा है, या फिर कोई वर्ड सी से बिगिन हो रहा है, कोई वाई से बिगिन हो रहा है, तो हम ये कैसे डिसाइड करें? हाउ टू डिसाइड दैट वेदर टू पुट अ और एन? ठीक है, अभी हम सिर्फ अ और एन की बात करेंगे. वी विल मूव टू द लेटर. इज इट क्लियर? सो अ और एन में हम कैसे डिसाइड करेंगे? नाउ लिसन टू दिस वेरी केयरफुली दैट लैंग्वेजेस आर सच दैट दे आर इंटरट्वाइंड विद ईच अदर, है ना, कुछ ना कुछ लिंक रहता है. सो जो चीज हम इंग्लिश अल्फाबेट के हेल्प से नहीं कर पाते हैं, इट इज क्वाइट कंफ्यूजिंग, है ना. किसी का साउंड वाई आता है, किसी का साउंड वो आता है, य साउंड आता है. सो वी गेट सो कंफ्यूज्ड वेदर टू यूज हाउ टू यूज आर्टिकल्स फॉर दिस टाइप ऑफ साउंड्स. अगर आप बोलोगे कि सुनना है तो, सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन टेक द हेल्प ऑफ हिंदी अल्फाबेट. सो दिस इज अ ट्रिक which I have used till now, and I guide my students always that while solving articles, please take the help of Hindi alphabet, because Hindi alphabet is based on sounds. I hope all of you know there are two divisions in Hindi alphabet. One is swar and one is vyanjan. So swar जो होता है ना, swar word से ही समझ में आ रहा है कि it is something related to sounds, right? So swar in English it can be called vowel sound. Okay, so vowel sound जो है ना, ये जो sounds है, these are called vowel sounds, and the rule is that
before vowel sound, you should always put an. Okay? Is it clear? That vowel sound, यानी कि तुमको सबसे पहले आर्टिकल सॉल्व करते समय क्या समझ में आना चाहिए कि whether this is a vowel sound or this is a consonant sound. अब we will try with a few examples. Okay? For example, एक जैसे मैंने word बोला one. One जो है one, इसमें तुम देखोगे व साउंड आ रहा है ना? If you write it in Hindi, one को अगर तुम हिंदी में लिखो तो तुमने क्या लिखा? व न. So व जो sound है, it is what? It is a consonant sound. Consonant sound is what? Ka, kha, ga, kha, ya, va, ra, la, va, sha. ये सब जो sounds है, these are what? These are consonant sounds. And before consonant sound, you always put a. Remember that. So ये जो अभी आपको दिख रहा है screen, this is the most important part to solve articles. A before consonant sound and before vowel sound. I hope I am clear. इस ये जो लिखा हुआ अभी है ना, इसको बिल्कुल you should put it in your mind. ऐसा इसको याद कर लो कि no one can confuse you later. Okay? And with more and more examples, we will try to just fulfill our queries also. कि ये कैसे है ना? अभी तक मैंने एक rule तो बता दिया, but only by solving examples you will be able to know it properly. So now, which are the examples? Now, there are 5 examples which I have chosen for this, and all these 5 are a little complicated, which are confusing, you can say. जो simple वाले हैं, जैसे this is a tall boy, है ना? या फिर he is a good listener, तो जो good g sound आ रहा है ना? तो मैंने क्या बोला तुमको? G-O-O-D, good. तुमको ये spelling नहीं देखना है. You have to listen to the sound. तो sound कौन सा आया good में? G sound. और ग साउंड जो है दैट इज कॉन्सोनेंट साउंड. और कॉन्सोनेंट साउंड के सामने हमेशा हमने क्या लिखा था अभी? कॉन्सोनेंट साउंड के सामने हमेशा क्या लगता है? अ लगता है. ओके, नाउ विद दिस विल मूव टू द फर्स्ट एग्जांपल व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये 5 एग्जांपल अगर आपको समझ में आ गए, इफ you are able to understand these 5 examples well, then I am very sure that no one can confuse you regarding articles in later life. Not only for this session, this topic is important from all the forthcoming competitive exams that you are going to give, or even during your office jobs when you are writing a letter or something. So you always get confused whether to write a or an. So now listen to these 5 examples and see these 5 examples. Try to solve these 5 examples very well. Okay. Now, first, I got dash unique gift. Now, what I've told you, अब जो unique word है, उसका spelling मत देखो. Okay? Listen to the sound of that word. Unique. So, अगर तुम उसको हिंदी में लिखोगे ना unique को, तो तुम सबसे पहले य लिखोगे, right? So, which means that unique word begins with y sound, and y sound is a consonant sound. य कहाँ आता है? हिंदी अल्फाबेट में य कहाँ आता है? व्यंजन में. और व्यंजन को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं? Consonant sound. So consonant sound के सामने क्या लगता है? Just see this rule again. Consonant sound के सामने क्या लगता है? अ लगता है. That is why in this example, I got dash unique gift. You will write a unique gift. Is it clear, all of you? These examples you have to write down, or yes, later I'll put one link in the chat box. Okay, so that link, if you open in another device right now, you will be able to just see all these examples. I have put all these examples in one docs file. Okay, and my lecture is going on at the same time, what you can do, you can just open that link in another device, and तो तुमको ज्यादा अच्छे से तुम relate कर पाओगे, क्योंकि वो सब examples जो है that I have, what I'm going to explain it here, I have put it there in that file. Okay, so it will be very much interactive also. You will be able to participate. Okay, I don't want that you should just listen and I'm going on speaking and you are just listening. You have to participate in this. So all those who have got a copy and pen, just write down these 5 examples and try to solve these. Okay, so the first, I hope you have understood. I got dash unique gift. I got a unique gift. Why a? Because unique, that word is beginning word with a y sound. Y sound is a consonant sound.
Okay, now let's come to the second one. Second example. He is dash honest man. Now, if you just see the spelling of honest, it begins with H, right? So it is so confusing. That H is actually a consonant. So till now it is embedded in your mind that consonant के सामने अ लगता है. But honest word, what I have said repeatedly, that you have to just listen to the sound of honest. What is it beginning with? What is the sound like? O sound, right? Or it comes as a vowel sound. है ना? अगर तुम rules में देखो तो vowel sound के सामने क्या लगता है? An लगता है. Okay? So that means that here we will have to put an. He is an honest man. Look, you should be able to explain someone na, ki why you have put or why you have put an. So this is the answer, that we don't have to see the spelling. We have to listen to the sound of that word. Okay, the noun or the adjective. So that sound is what? The sound is, it is of vowel sound. That is why we are putting an. Okay, you should be able to defend yourself that why you are putting an, why you are putting a, right? Now let's come to the third example. This is also very important. That man is dash NRI. That man is dash NRI. Now, what is the trick that I have told you? Ki always write down that word in Hindi. NRI. अब N को अगर तुम हिंदी में लिखोगे तो तुम क्या लिखोगे? पहले A लिखोगे, फिर न लिखोगे, है ना? तो तुमने सबसे पहले क्या लिखा? सबसे पहले तुमने A लिखा. अब A जो है, A is what? A comes as a vowel sound. स्वर में आता है ना A. So it is स्वर is called vowel sound in English. Okay? पहले तो ये क्लियर कर लो कि स्वर को बोलते हैं vowel sound और व्यंजन को बोलते हैं कॉन्सोनेंट साउंड. ये अगर तुमको याद हो गया तो नो वन कैन कंफ्यूज यू, राइट? बिकॉज पीपल टेंड टू कंफ्यूज कि नहीं ऐसा थोड़ी ना है, you are saying something which we have not heard till now, but you should be able to satisfy their queries, right? So स्वर is vowel sound और स्वर के सामने जो vowel sound है उसके सामने हमेशा रूल क्या बोलता है? vowel sound के सामने हमेशा an लगता है और consonant sound के सामने हमेशा अ लगता है. Okay. So this third example, that man is dash NRI. I hope now you have understood that NRI में N को नहीं देखना है, N के pronunciation को देखना है. And what is the pronunciation? It is A न. सबसे पहले हमने A लिखा, right? So A is a vowel sound, and that is why we will put an NRI. What we'll put? We'll put an NRI, क्योंकि NRI में vowel sound है और vowel sound के सामने हमेशा an लगता है. I hope it is clear. Now, next, he is dash one man army. This example is also very important because it is tricky. He is dash one man army. अब one ये जो word है उसको अगर तुमने हिंदी में लिखा तो तुमने सबसे पहले क्या लिखा? व लिखा. व is a व्यंजन, right? It comes as a व्यंजन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? It is called consonant sound. Consonant sound के सामने हम क्या लगाते हैं? रूल में क्या बोलता है? Consonant sound के सामने we put a. So that is why fourth example जो है he is dash one man army. तो तुम वहां पे क्या लिखोगे? You will write a one man army. Is it clear why? That why should be answered, है ना? Why वो तुमको एक बार समझ में आ गया ना, then no one will be able to confuse you कि why you have put why you have put an. You will be able to just reply to them, okay, confidently. Now the last example, I will come in dash R. Again a tricky one. Why? Because HOUR spelling है. But as I have told you, you don't have to see the spelling at all. What you have to do? You have to listen to the sound. So what is the sound in R? A sound. Okay? And A comes where? It comes as a swar. Right? Swar को English में क्या बोलते हैं? Vowel sound. And vowel sound के सामने क्या लगता है? हमेशा rule क्या बोलता है? Vowel sound के सामने
an लगता है. So that is why here in the fifth example we will put an r. Okay, her sound आ रहा है क्या? No, that her sound is not at all audible. देखो spelling तो देखना ही नहीं है, सिर्फ sound सुनना है, right? And sound में भी r आ रहा है, her नहीं आ रहा है, right? So r जो है r sound, that is vowel sound, और vowel sound के सामने हमेशा क्या लगता है? An लगता है. Okay, an r. So I hope this part is clear to you. And an. अब इसमें कोई confusion ना हो. I hope. So what is what you have to do at home? All the grammar books that you can put your hand into. Just go through all the examples of and an. As many examples as you solve, you will get more and more clearer. Okay. Now, and an part we have completed. Now let's come to the definite article. And an क्या थे? वो indefinite article थे. Now we move to definite article. That is what? The. एक ही है the. है ना? इतना confusion का कुछ नहीं है कि बहुत सारे हैं. There is only one definite article and that is the. Now, how to solve? The most important part, articles and ये सब की theory exam में नहीं आती है ना. You have to solve the examples. तो अब तुम क्या करोगे? You have to just try to solve the examples. अब इसके कुछ rules है. Again, the कहाँ लगाना? Before what? Before what you have to put the. So सबसे पहला क्या है? You have to put the before unique things in the world. जैसे the sun, the moon, है ना, जो एक ही है दुनिया में. The Milky Way, the universe, the galaxy, ये सब चीजों के सामने तुम क्या लगाते हो? The लगाते हो. Next, something particular. जैसे for example अगर मैं बोलूं the man is watching us, तो इसका मतलब क्या है कि some particular man is watching us. हम ये बोल रहे हैं कि कोई भी एक आदमी देख रहा है? No, someone particular, है ना, जिसको हम पॉइंट कर सकते हैं कि वो इंसान हमको देख रहा है, right? So the man, अगर हम a man बोलेंगे ना तो वो कोई भी हो सकता है, वो पर्टिकुलर कोई एक इंसान की बात नहीं कर रहा है. A man is standing, कोई एक आदमी खड़ा है, right? So a man और the man में क्या फर्क है कि the man is for some particular person, वो आदमी जिसको हम पॉइंट कर सके. ओके, सो वहां पे हम the man लगाते हैं. तुमने बहुत बार ये स्टोरी सुनी होगी, there was a crow, है ना, एक कौवा था. तो तुमने तब a crow क्यों बोला? क्योंकि तभी तुमने कहानी की शुरुआत की है एंड यू आर नॉट क्वाइट कॉन्फिडेंट कि ये कौन सा कौवा है, राइट? अब सेकंड सेंटेंस में तुम क्या बोलते हो? द क्रो वॉज थर्स्टी. अब तुम किस क्रो की बात कर रहे हो? अब वो क्रो की, द पर्टिकुलर क्रो जिसकी तुमने पहले सेंटेंस में बात की थी, अब वो जो है वो क्लियर हो गया कि ये कौन सा क्रो है. ये वही क्रो है जिसके बारे में कहानी है, राइट? सो द क्रो इज थर्स्टी, इट बिकम्स पर्टिकुलर, इसलिए तुमने वहां पे द लगाया. नेक्स्ट सेंटेंस में तुमने अ क्रो इज थर्स्टी बोला क्या? नहीं, तुमने द क्रो इज थर्स्टी बोला. व्हाई यू हैव डन दैट? बिकॉज बाय दैट टाइम यू नो दैट ये कहानी एक कौवे के बारे में है जो बहुत ज्यादा प्यासा है. ओके, सो नाउ समथिंग पर्टिकुलर वाला जो पार्ट है वो समझ गया. वेयर टू पुट द, जहां हम किसी पर्टिकुलर इंसान की, पर्टिकुलर चीज की, जिसको हम पॉइंट कर सके कि ये वो, बोलते हैं ना, उस आदमी को, है ना, वो लड़का, है ना, ये लड़की, ऐसा जो होता है ना, उसमें हम द लगाते हैं. नाउ ग्रुप नेम्स के सामने हम द लगाते हैं. अब ये जो ग्रुप नेम्स है और ये जो एब्रिविएशंस है, ये आर मोर और लेस द सेम थिंग. कैसे? ग्रुप नेम्स में क्या क्या आ सकता है? जैसे USA, जैसे UN, जैसे UAE. अब ये सब में कॉमन क्या है? U, राइट? अब ये USA का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. अब जैसे ही हमने यूनाइटेड ये वर्ड लिया, इट बिकम्स अ ग्रुप नेम एंड इट इज नॉट जस्ट अ मतलब प्रॉपर नाउन नहीं है. यूएसए कैन नॉट बी कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन. अगर यूएसए वालों को सही में एक प्रॉपर नाउन ढूंढना था ना अपने कंट्री के लिए, तो वो उन्होंने नाम रखना था अमेरिका. बट उन्होंने क्या नाम रखा? यूएसए, जिसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. सो इट बिकम्स अ ग्रुप नेम. सो जहां पे भी आप देखोगे यूएसए, यूएन, यूके, राइट, है ना, ये सब जो वर्ड्स है ये दे बिकम ग्रुप नेम्स. और ग्रुप नेम के सामने हमेशा क्या लगता है? द लगता है. अगर मुझे बोलना है कि आई एम गोइंग टू डैश यूएस, तो मैं क्या बोलूंगी? आई एम गोइंग टू
the USA. Okay, he is he is an operator at dash UN, the UN. Okay, तो UK, the UN, the USA ऐसा लगता है. Okay, so I hope you have understood कि यूनाइटेड ये वर्ड जैसे ही आ जाता है ना, उसका मतलब ही होता है इट इज अ ग्रुप नेम, और ग्रुप नेम के सामने हमेशा द लगता है. नाउ नेक्स्ट, ब्रांड नेम्स. कोई भी ब्रांड का जब नाम होता है ना, भले ही उसके कितने भी ब्रांचेस हो. फॉर एग्जांपल, नागपुर में एक होटल है, ऑल ऑफ यू नो, रेडिसन ब्लू. ओके, इट इज अ ब्रांड. ओके, तो अब वो हर शहर में भी अगर खोलेंगे ना रेडिसन ब्लू, तो उसका नाम क्या कहलाएगा? द रेडिसन ब्लू. वैसे ही द ताज, जो ताज होटल है ना, उसको द ताज बोलते हैं. व्हाई? बिकॉज इट इज अ ब्रांड नेम, नो वन कैन कॉपी इट. ओके, अब उन्होंने द ताज रख दिया तो कोई और द ताज नहीं रख सकता. इट हैज बिकम देयर कॉपीराइट. ओके, सो जहां पे भी ब्रांड नेम्स आते हैं, होटल के नाम, कोई पर्टिकुलर जिसका उन्होंने कॉपीराइट लेके रखा हो, तो हम वहां पे द लगाते हैं. नेक्स्ट, नेम्स ऑफ सीज, ओशंस, रिवर्स, है ना. तो इसके कोई एग्जांपल हम देख सकते हैं क्या? फॉर एग्जांपल, अरेबियन सी, उसको हम बोलते हैं द अरेबियन सी. पैसिफिक ओशन, उसको हम बोलते हैं द पैसिफिक ओशन. रिवर, यमुना, उसको हम बोलते हैं द यमुना. द ब्रह्मपुत्र, द गैंजेस, है ना. तो इसका मतलब क्या है कि वो भले ही वो सी या भले ही वो ओशन पूरे दुनिया में क्यों ना घूमे, बट हर जगह उसका नाम एक ही होगा, द पैसिफिक ओशन, द अरेबियन सी, है ना, द नाइल. ओके, ये जो है, बिकॉज दीज आर द नेम्स ऑफ सी, और माउंट एवरेस्ट और ये सब जो है, इसके भी सामने द लगता है. नाउ, नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स. सभी लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आई होप सो. हैव यू रेड टाइम्स ऑफ इंडिया? व्हाट इज द नेम रिटन एट द बिगिनिंग? द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हितवादा. ओके, सो ऑल द इंग्लिश न्यूज़पेपर्स इफ यू कैन सी, वो उसके सामने द जरूर रहता है. सो व्हाई दिस इज सो? क्यों उसके सामने द रहता है? बिकॉज it is the name of one newspaper. It is like a brand, even though there are many branches. वो चलेगा कि एक रायपुर में ब्रांच है, एक नागपुर में है ना, बहुत सारे ब्रांचेस है, बट एवरीवेयर इट विल बी कॉल्ड द टाइम्स ऑफ इंडिया और द हितवादा. सो ये जो पूरे, अगर आपको समझ गया है ये सब, तो आई डोंट थिंक यू विल सॉल्व एनी प्रॉब्लम व्हाइल सॉल्विंग द डेफिनेट आर्टिकल, है ना. डेफिनेट आर्टिकल सॉल्व करने के लिए इतने रूल्स बहुत है. इतना भी अगर आपने याद रख लिया, एंड वन थिंग मोर, सुपरलेटिव डिग्री याद रखना. व्हेनेवर वी पुट बेस्ट या फिर मोस्ट, ये जो वर्ड है ना, उसके सामने हम हमेशा द लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, शी इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास. तो हम द बेस्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बेस्ट हमेशा एक ही होता है, कोई पर्टिकुलर होता है. सो सुपरलेटिव डिग्री के सामने हम हमेशा द लगाते हैं. राइट, नाउ some examples that we can see related, which I'm going to put it in the chat box also. So वो मैं थोड़ी देर बाद कर दूंगी. Okay, just as I stop this presentation, then I'll put a link in the chat box. So 5 एग्जाम्पल हम द से रिलेटेड सॉल्व कर लेंगे. Okay, I'll put a link in the chat box, and I hope that all of you have some other device through which you can open that link, and just along with my presentation you can solve those examples. ठीक है, तो try कि भाई अगर आप मोबाइल से ज्वाइन हुए हो, तो अगर आपके पास लैपटॉप है, तो वो जो लिंक जो मैं भेजने वाली हूँ आफ्टर 2 minutes, तो वो आप क्या करोगे, आप लैपटॉप में ओपन कर देना. ठीक है, तो जैसे जैसे मैं आगे का पढ़ाने वाली हूँ ना, तो वो आप उसमें ओपन करके उसके साथ साथ उसके एग्जाम्पल सॉल्व करते चलना. सो यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर. सो विद दिस वी जस्ट फिनिश वन टॉपिक, द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज आर्टिकल्स. देखो, हम बराबर हाफ एन आवर हुआ है एंड वी हैव कंप्लीटेड आर्टिकल्स हियर. नाउ वी आर गोइंग टू टेक अप द नेक्स्ट पार्ट ऑफ माय सेशन, एंड दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच. सो I'll just describe these parts of speech, the name, I'll just enumerate them, and then I'll end my presentation, because after that, all the work that we are going to do is through that link that I'm going to send you in the chat box. Okay, so parts of speech जो है वो कौन से हैं? Nouns, pronouns, verbs, adjectives, adverbs, prepositions,
conjunctions, and interjections. You can write this down. Okay, so ये जो है, you can see there are 8 parts of speech, है ना, और साथ में articles. ये जो पूरा मिला के जो है, if you this actually this is all is just a revision for you. ये सब आप पढ़ चुके हो till your 10th standard, till your 12th standard, ये सब पढ़ चुके हो, but it is just one. We are just catching up with that old topic so that एक revision हो जाए, right? So now what I'll do, I hope you have written down all these. Now I will just end my presentation, and means I'll just stop sharing the screen. Okay, just give me 1 minute. Okay, so now I have just stopped my screen sharing, and from now, what I'm going to do, first of all, I'll put that link in the chat box. Sorry, not this one. This. Just give me 1 minute. Okay, so this link that I'm putting in the chat box, I hope all of you can see this link that I've put on the chat box. Can you tell me once whether it is visible? Visible. Okay. So now, students, what you have to do, if you can open this link on another platform or another device, so that will be good, because now whatever I'm going to teach, the examples are in this file. All the examples that we are going to solve are in this file. So if you open it, then we can do the along with the lecture, you will be able to understand more, because it will be more or less participative. Okay, so you can go on solving the examples. Now, the first part is of the parts of speech is nouns. Nouns, all of you know that nouns are what? These are names of something particular. So the names, nouns can be divided as common nouns, proper nouns, collective nouns. Okay, so all this is revision for you. So now coming to common nouns. Common nouns are of 2 types, countable and uncountable. Okay, so countable things which can be counted are called countable nouns, and something which cannot be counted like salt, sugar, these are called uncountable nouns. So related to this, I have put a few examples in that file. So the examples I'm going to tell here also, along with that, you can solve there also. Now, for example, if in the exam it is asked, a question is there that spot the error. Okay, the steel bar is 30 foot long. The steel bar is 30 foot long. Now, what is the error in this sentence? Then what you are going to do? What you are going to change in this sentence? What you will write? The steel bar is 30 feet long. So foot is wrong. उसके जगह क्या होना चाहिए? Feet होना चाहिए. Okay. वैसे ही और एक एग्जांपल हम देखेंगे जो कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड है. कलेक्टिव नाउन कौन से होते हैं? आई होप यू नो, जैसे बुके ऑफ फ्लावर्स, हर्ड ऑफ शीप, है ना, स्वार्म ऑफ बीज. ठीक है. सो अगर एक एग्जांपल दिया है, लुक एट द फ्लॉक ऑफ बीज, और ऊपर लिखा हुआ है स्पॉट द एरर. सो व्हाट इज रॉन्ग इन दिस सेंटेंस? लुक एट द फ्लॉक ऑफ बीज नहीं होता है, लुक एट द स्वार्म ऑफ बीज. बीज के लिए हमेशा स्वार्म यानी झुंड जिसको बोलते हैं ना, जो मधुमक्खियों का जो एक झुंड आता है ना, उसको स्वार्म बोलते हैं. फ्लॉक ऑफ शीप हो सकता है, बट फ्लॉक ऑफ बीज नहीं हो सकता. तो दैट इज व्हाई व्हाट इज द एरर इन दैट सेंटेंस? लुक एट द फ्लॉक ऑफ बीज की जगह क्या होगा? लुक एट द स्वार्म ऑफ बीज. ठीक है. सो ऐसे नाउन से रिलेटेड इस टाइप के एग्जाम्पल आपको एग्जाम में आ सकता है.
जो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, ये सब में गलतियां नहीं होती है। ओके, गलतियां ज्यादातर होती है collective noun. So what I suggest that you make list about. You had this when you were 5th standard to 10th standard. ये सब तुमने किया हुआ है. So you have already got. If you have got some grammar book at home, just go through at least 50 collective nouns. At least 50 आपको पढ़ना ही है. ठीक है? So that तुम आपको अच्छे से collective nouns में कोई confuse ना कर सकते कि herd of sheep होता है कि swarm of sheep होता है ना. You should know everything. So make a list. So this is again ये जो पार्ट है हम इतने सारे कवर नहीं कर सकते एंड अगेन हम एक जल्दी जल्दी ग्लिम्स ले रहे हैं. सो दिस स्टडी यू विल हैव टू डू ऑन योर ओन. कलेक्टिव नाउन्स का एक लिस्ट बनाना, एटलीस्ट 50 कलेक्टिव नाउन्स का एक लिस्ट बना लो. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज प्रोनाउंस. हम पार्ट्स ऑफ स्पीच एक एक करके देख रहे हैं. सो व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक? इट इज प्रोनाउंस. सो प्रोनाउंस क्या होता है? जो नाउन के जगह यूज किया जाए. Something used, words which are used in place of nouns. Why we use them in place of nouns? To avoid repetition. जैसे फर्स्ट सेंटेंस में हमने किसी का नाम ले लिया तो जरूरी है सेकंड सेंटेंस में फिर से वो नाम बोलना है ना. अगर हमने फर्स्ट सेंटेंस में बोला राम इज अ स्मार्ट बॉय, अब हमको सेकंड में फिर से कुछ राम के बारे में बोलना है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू से, ही इज इंटेलिजेंट ऑल्सो, है ना. तो हमने नेक्स्ट सेंटेंस में फिर से ना राम ना लिखते हुए हमने ही लिखा. So जो ऐसे वर्ड्स जैसे he, she, they, ओके, ये हम लोग एज सब्जेक्ट यूज करते हैं नाउन की जगह. और वैसे ही अगर ऑब्जेक्ट में हमको नाउन के जगह कुछ यूज करना है तो हम यूज करते हैं me, है ना, और him और her और them. ऐसे वर्ड्स हम यूज करते हैं फॉर ऑब्जेक्ट्स. तो ये सब जो वर्ड्स है दीज आर कॉल्ड प्रोनाउंस. अब प्रोनाउंस में याद रखने के लिए एक ही चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ केसेस इन प्रोनाउंस. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन व्हिच मींस मैं, राइट. सो इसके लिए कौन से प्रोनाउंस यूज करेंगे? आई, वी, मी या फिर अस. ओके, तो ये जो 4 है ये फर्स्ट पर्सन के लिए हम यूज करते हैं. The same way we all use as for second person एक single word है ना. second person is quite easy, उसके लिए एक ही word है that is you. वो subject में भी you ही रहता है और वो object में भी जाता है तो वो पीछे जब sentence के last में भी जाता है तो you का you ही रहता है. ओके, है ना. what happened to you तो हम you ही बोलते हैं. और you are invited उसमें भी हम शुरू में है sentence के subject है फिर भी हम you ही बोलते हैं. so second person में सिर्फ एक word है, बहुत लोगों के लिए भी हम you बोलते हैं, है ना. सो यू एक सिंगल वर्ड है. और थर्ड पर्सन के लिए जो है हम क्या बोलते हैं? वो, राइट, ही, शी, और बहुत सारे लोग हैं तो दे, है ना. ये हम सब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं. और अगर ऑब्जेक्ट में जाता है तो फिर वो क्या बन जाता है? हिम, हर, देम. ओके, सो प्रोनाउंस में इतना है. और इसके अलावा प्रोनाउंस में ना कुछ सब डिविजन्स है विच यू शुड नो. सब डिविजन्स या क्लासिफाई कर सकते हैं हम प्रोनाउंस को. यू कैन से फर्स्ट इज पोजेसिव प्रोनाउन. व्हाट इज पोजेसिव प्रोनाउन? सो पोजेसिव प्रोनाउन इज समथिंग व्हिच बिलोंग्स टू समवन. ओके, सो अगर मैं बोलूं कि दिस बुक इज माइन तो इसका मतलब है जो माइन वर्ड है ना, इट इज अ पोजेसिव प्रोनाउन. इट शोज दैट वो जो बुक है इट बिलोंग्स टू मी. ओके, सो माइन, हिज, हर, देयर्स, yours, ये सब जो words है these are possessive pronouns. And remember one thing, always students tend to confuse in the spelling of that theirs, है ना, या hers. उसमें apostrophe s नहीं लगता है. In possessive pronoun you never put apostrophe s. अब जो yours वहां लिख रहे हो या फिर theirs वहां लिख रहे हो THEIRS, तो उसमें तुम ऊपर apostrophe नहीं लगाओगे. Remember that. Okay, possessive pronoun में कभी apostrophe नहीं लगता है. Another type of pronoun, reflexive. Reflexive pronoun क्या होता है? अगर मुझे बोलना है ये काम मैंने खुद किया, है ना, this work she has done herself. तो herself जो word है it emphasizes. reflexive यानी क्या होता है? कुछ emphasize करके बोलना कि खुद किया. तो reflexive pronoun से एक word आपको याद रखना है that is self. जहां पे भी himself, herself, themselves ऐसा जो word आता है ना, it becomes reflexive pronoun. Okay,
देन वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेट करना यानी क्या होता है? कुछ इशारा करना, डेमोन्स्ट्रेट करना। सो अगर मैं बोलूं दिस बुक इज हर्स, सॉरी, समवन रोट दिस, समवन रोट दिस, तो वो जो दिस है उसका मतलब क्या है? किसी ने ये लिखा, तो वो हमने इशारा किया, है ना? तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या होता है? वी डेमोन्स्ट्रेट समथिंग। नाउ फ्यू आर इनडेफिनेट प्रोनाउंस। इनडेफिनेट यानी क्या? जो एग्जैक्ट नहीं बता रहा है कि कौन है ना? अगर मैं ऐसा एक सेंटेंस लू कि ही सॉ द शूटिंग स्टार्स बट आई डिडंट सी एनी। हाँ, उसने तो शूटिंग स्टार्स देख लिया पर मुझे कुछ कोई भी शूटिंग स्टार नहीं दिखा, बट आई डिडंट सी एनी। तो जो एनी है दैट वर्ड इज व्हाट? इनडेफिनेट प्रोनाउन, क्योंकि वो हमको कुछ पर्टिकुलर नहीं बता रहा है। एनी वर्ड से हमको पूरा आइडिया नहीं आ रहा है ना? एंड द लास्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज कॉल्ड रिलेटिव। अब रिलेटिव वर्ड का ही मतलब है कि जो किसी चीज को किसी चीज से रिलेट करे, है ना? अगर मैं बोलूं दिस इज द डॉक्टर हु हैज सेव्ड मी, तो इसका मतलब क्या है? कि मैं बोल रही हूँ कि ये वो डॉक्टर है जिसने मेरी जान बचाई, राइट? तो जिसने, हु, ये जो वर्ड है इट गिव्स अस द रिलेशन। इट रेफर्स टू नाउन्स कमिंग बिफोर देम इन अ सेंटेंस। ये हमेशा कहाँ प्लेस रहेगा? ये नाउन के बाद में प्लेस रहेगा, क्योंकि वो नाउन का रिलेशन आगे के पार्ट ऑफ सेंटेंस से बताएगा। ओके, सो इट इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। सो अभी तक हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या देखा? व्हाट वी हैव सीन टिल नाउ, फर्स्ट इज नाउन्स, सेकेंड इज प्रोनाउंस। ओके, अब नाउन्स में मैंने आपको 3 टाइप के बताए हैं नाउन्स, कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, जो बहुत इजी था। सो एंड आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड नाउन्स। अब मैंने प्रोनाउंस में क्या बताया? 5 टाइप बताए हैं प्रोनाउंस के। एक मैंने बताया है पॉजेसिव प्रोनाउन। ओके, पॉजेसिव यानी मेरा, है ना? जिससे रिलेशन, मेरा, तेरा, तुम्हारा, आपका, हमारा, ये सब जो वर्ड्स होते हैं ना, जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं, हाँ, उसको पॉजेसिव को माइन, हर्स, हिज, योर्स, ये जो वर्ड्स होते हैं दीज आर कॉल्ड पॉजेसिव प्रोनाउंस। फिर हमने देखा रिफ्लेक्सिव, उसको, इसके लिए आपको एक ही वर्ड याद रखना है, दैट इज व्हाट? दैट इज सेल्फ। जहां पे भी हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्फ ऐसा आएगा, दैट इज रिफ्लेक्सिव। देन वी सॉ डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव में क्या होता है? जो इशारा कर सके हम कि ये चौक है ना, फॉर एग्जाम्पल समवन रोट दिस, ये लिखा, तो डेमोन्स्ट्रेटिव, दिस इज द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। वैसे ही इंडेफिनेट यानी जिसका ठीक से हमको समझ में ना आ रहा हो, एनी, ऐसे जो वर्ड होते हैं ना, वो हो जाते हैं ये इनडेफिनेट। और लास्ट हमने देखा रिलेटिव, जो नाउन का रिलेशन आगे के पार्ट ऑफ सेंटेंस से क्या है वो बताता है। फॉर दैट वी सॉ वन एग्जांपल, द डॉक्टर, दिस इज द डॉक्टर हु सेव्ड मी। अब उसमें जो हु वर्ड है वो है रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है? So I hope that with this the pronouns topic is clear to you, and I have also put a few examples related to pronouns in that file, जो अभी चैट बॉक्स में आपको मैंने गूगल ड्राइव का एक लिंक भेजा है ना, उसको आप अगर अभी के अभी ओपन करोगे तो उसमें हर टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल्स है, नाउन से रिलेटेड है, प्रोनाउन से रिलेटेड है। अभी नेक्स्ट हमारा है वर्ब्स, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ब्स क्या होते हैं सबको पता है, वर्ब्स को हिंदी में क्या बोला जाता है? क्रिया, राइट? सो वर्ब्स जो होते हैं ना, दिस आर आल्सो ऑफ 2-3 टाइप्स, है ना? अभी तक हमको पता था बस एक मेन वर्ब होता है, प्ले, सिंग, डू, गो, है ना? ये मेन वर्ब है, बट एडिशनल भी कुछ वर्ब्स होते हैं। ये एडिशनल वर्ब्स को क्या बोलते हैं? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड मोडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है? तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं? जैसे have, had, है ना? I have been playing since 1 hour. तो have जो वर्ड है वो जो है इट इज प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। I did listen to that song, हाँ, यानी मैंने वो सॉन्ग सुन लिया जो तुमने बोला था, I did listen, तो उसको बोलेंगे हम कि did जो वर्ड है इट इज प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट, मोडल ऑक्सिलरीज। मोडल ऑक्सिलरीज जो है ना, इसमें तुम बोल सकते हो, ये भी अगेन यू हैव रेड दिस, जस्ट एक रिवीजन के लिए हम क्विक एक ग्लैंस ले रहे हैं, इसलिए मैंने इससे रिलेटेड कोई तुमको स्लाइड्स इसलिए नहीं बनाए, जितने स्लाइड्स देखोगे ना उतना कंफ्यूजन बढ़ेगा, वो टॉपिक तुमको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, जबकि एक टॉपिक जस्ट तुम्हारा रिवीजन है। मॉडल ऑक्सिलरीज में तुमको इतना ही याद रखना है, कैन, विल, शुड, मे, माइट, मस्ट,
O2, इतने भी याद रखे ना, अगर तुमने, ये सब मॉडल ऑक्सिलरीज है ना। कैन, विल, मे, तुम बोलते हो ना मे आई कम इन, तो वो जो मे है इट इज अ मॉडल ऑक्सिलरी। मे मतलब हम बोलते हैं फॉर परमिशन, राइट। वैसे ही अगर मैं बोलूँ इट माइट रेन टुडे, तो माइट का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, मोर प्रोबेबिलिटी, है ना। मे, इट मे रेन टुडे मैं बोलूँ तो इसका मतलब है कि हो सकता है बारिश हो, कम चांसेस है। बट अगर मैं बोलूँ इट माइट रेन टुडे, तो उसका मतलब होता है कि ज्यादा चांसेस है कि आज बारिश हो। सो मोर प्रोबेबिलिटी के लिए हम हमेशा माइट यूज करते हैं, लेस प्रोबेबिलिटी के लिए हम हमेशा मे यूज करते हैं। सो अगेन रिलेटेड टू दीज देयर आर मेनी एग्जांपल्स इन दैट फाइल, जो आप अभी के अभी सॉल्व करोगे तो आपको ये टॉपिक और क्लियर होते जाएगा। ओके, मॉडल ऑक्सिलरी फॉर परमिशन कौन सा होता है, मे। मॉडल ऑक्सिलरी फॉर प्रोबेबिलिटी कौन सा होता है, माइट। मॉडल ऑक्सिलरी फॉर एबिलिटी कौन सा होता है, कैन, है ना। आई कैन डू दिस, मतलब मुझ में वो एबिलिटी है कि मैं वो कर सकूं। मॉडल ऑक्सिलरी फॉर श्योरिटी कौन सा होता है, आई विल डू दिस, मतलब मैं श्योरली ये करने वाली हूँ, विल, राइट। तो इस टाइप के मॉडल ऑक्सिलरीज है। अब एक और जो टाइप होता है वर्ब का, वो होता है ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वो एक्शन होता है ना जो हम देख सकते हैं, है ना, जो हमको, जैसे ही इज प्लेइंग, तो प्लेइंग जो वर्ड है इट इज ट्रांजिटिव, क्योंकि उसमें हमको समझ में आता है कि समथिंग इज बीइंग डन, और उसके साथ एक ऑब्जेक्ट भी होता है ट्रांजिटिव वर्ब में, है ना। ही इज प्लेइंग इन द गार्डन, एक ऑब्जेक्ट भी होता है, ही इज प्लेइंग विद अ बॉल। ओके, सो एक ऑब्जेक्ट जहां पे भी हो उसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव। और इनट्रांजिटिव कैसा होगा, जैसे द सन शाइन्स। शाइन्स वर्ड एक वर्ब है, बट कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इस सेंटेंस में। अगर ऐसा भी सेंटेंस है कि दिस द सन इज शाइनिंग ब्राइटली, तो ब्राइटली जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं है, वो सिर्फ ये बता रहा है कि वर्ब कैसे, उसका इंटेंसिटी बता रहा है कि अच्छे से ब्राइटली वो शाइन कर रहा है, राइट, बट वो ऑब्जेक्ट नहीं है। सो ऐसे जो वर्ब्स होते हैं जिसके सामने ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसको बोलते हैं हम इनट्रांजिटिव वर्ब। इसका कोई एग्जाम्पल बताऊं, जैसे अगर मैंने बोला राम लाफ्ट, राम लाफ्ट, तो लाफ्ट वर्ड में समझ में आ रहा है कि एक एक्शन हुआ, लेकिन मतलब किसी ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट नहीं होने की वजह से दैट बिकम्स इनट्रांजिटिव वर्ब। ओके, नाउ लास्ट पार्ट ऑफ वर्ब्स इज फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब क्या होता है, तुमने सभी ने सुना होगा ना, पुट ऑन, आई हैव पुट ऑन वेट। तो पुट ऑन में हमने क्या किया, हमने पुट के साथ ऑन लगाया, तो उसका मतलब क्या हो गया कि गेन, इंक्रीज, पुट ऑन वेट यानी इंक्रीज वेट, राइट। वैसे ही अगर हमने पुट के साथ इन लगा दिया, ही हैज पुट इन एफर्ट्स, तो उसका मतलब क्या होगा कि टू गिव, है ना, टू मतलब शो समथिंग, यानी पुट इन यानी कुछ उसने लगाया, राइट। सो पुट इन एफर्ट्स। वैसे ही पुट अप, पुट अप क्या होता है, हमने पुट के साथ जैसे अप लगा दिया तो उसका मतलब क्या होगा, पुट अप विथ यानी टू टॉलरेट समथिंग। सो हम जैसे जैसे पुट ही वर्ड है, पुट वर्ड के साथ कभी ऑन लगाया, कभी इन लगाया, कभी अप लगाया, लेकिन क्या हो गया, उसका मीनिंग चेंज होता गया। सो दीज आर कॉल्ड फ्रेजल वर्ब्स। सो रिलेटेड टू दिस ऑल्सो, ये वर्ब से भी रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स है उस लिंक में जो आपको अभी के अभी सॉल्व करना है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, एडजेक्टिव्स। विशेषण हिंदी में बोलते हैं हम, वेरी इजी, हाँ, क्योंकि ये सब हमको ऑलरेडी पता है। विशेषण कौन से होते हैं, बिग हाउस, तो बिग इज द एडवर्ब, एडजेक्टिव, ओके। या फिर रेड टाई, रेड इज द एडजेक्टिव। कॉटन साड़ी, कॉटन इज द एडजेक्टिव। ऑल ऑफ यू नो, इसमें सिर्फ एक ही चीज है जो जहां हम कंफ्यूज होते हैं एडजेक्टिव में, एंड दैट इज कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। जैसे ही हम कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स में 3 टाइप होते हैं, ऑल ऑफ यू नो, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। फॉर एग्जांपल अगर एक वर्ड है लिटिल, तो लिटिल जो है वो पॉजिटिव डिग्री है, उसी का कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा, लेस, और उसी का सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा, लीस्ट। तो यहाँ पे हम कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ लेस लगाना, कि लिटिल लगाना, कि लीस्ट लगाना। ओके, सो दिस इज द पार्ट विच रिक्वायर्स अ लिटिल प्रैक्टिस। सो इससे भी रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स है जो मैंने वो फाइल में किए हैं पुट। अभी भी जिसने लिंक नहीं देखा है, प्लीज गो टू द चैट बॉक्स, कॉपी दैट लिंक एंड जस्ट ओपन इट इन अनदर डिवाइस, एंड साइड बाय साइड, जैसे जैसे मैं ये लेक्चर ले रही हूँ, साइड बाय साइड तुमको वो एग्जाम्पल सॉल्व करना है।
यहाँ पे हम एक दो एग्जाम्पल सॉल्व करके भी देख सकते हैं एडजेक्टिव्स के। ओके, सो हम कौन से एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे एडजेक्टिव्स के? आई टेल यू। फर्स्ट एडजेक्टिव्स का हम फर्स्ट एक सॉल्व करते हैं। हाँ, मदर इज अ डैश सिंगर देन मी। मदर इज अ डैश सिंगर देन मी, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है गुड। तो इसका मतलब क्या है? हमको गुड का कोई एक फॉर्म वहां पे लगाना है जो शो करे कि मदर मेरे से बेटर सिंगर है। तो हम कौन सा फॉर्म यूज करेंगे गुड का? कंपैरेटिव फॉर्म, दैट इज बेटर, है ना। मदर इज अ बेटर सिंगर देन मी। ऐसे एग्जाम्पल आपको एग्जाम में आएंगे कि ब्रैकेट में कुछ दिया हुआ होगा और उसी का आपको कोई दूसरा फॉर्म वहां पे फिल इन द ब्लैंक में लगाना है। या फिर अगर हम एग्जाम्पल ले, सविता इज द डैश ऑफ ऑल माई फ्रेंड्स, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है चाइल्डिश, तो हमको चाइल्डिश का कोई ऐसा फॉर्म लगाना है जिससे ये समझ में आए कि सविता सबसे ज्यादा चाइल्डिश है सभी फ्रेंड्स में, राइट। सो व्हाट वी आर गोइंग टू पुट? सविता इज द मोस्ट चाइल्डिश अमंग ऑल माय फ्रेंड्स। तो हमने क्या किया? चाइल्डिश के सामने मोस्ट लगा दिया। सो ऐसे एग्जाम्पल भी उस लिंक पे है, यू विल हैव टू सॉल्व दोज एग्जाम्पल्स। अगर इसमें तुमको दिस टॉपिक वी हैव टू गो ऑन अ लिटिल फास्ट, तो इसका एक ही तरीका है कि यू हैव टू सॉल्व ऑल द एग्जाम्पल्स गिवन इन दैट लिंक जो चैट बॉक्स पे मैंने डाला है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज एडवर्ब्स। एडवर्ब्स मतलब क्या है? ऐसा कुछ जो वर्ब के साथ प्लेस किया हुआ हो, which shows that how the verb is being, how the action is being done. It can be adverb of time, adverb of frequency, है ना, adverb of position, कुछ भी हो सकता है, adverb of degree। अगर मैं बोलूँ beautifully, या फिर अगर मैं बोलूँ especially, है ना, या फिर surely, हाँ, तो ये सब हो जाता है adverbs। All this you already know, so we are skipping this topic a little, क्योंकि adverbs जो है वो आप ऑलरेडी तुम जैसे वो सॉल्व करोगे ना एक्सरसाइज, तो तुमको 5 एग्जांपल सॉल्व करने से ही एडवर्ब्स पूरे समझ में आ जाएंगे। नाउ कमिंग टू प्रेपोजिशंस, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्रेपोजिशंस, वर्ड्स व्हिच शो पोजीशन। कोई भी वर्ड जो आपको पोजीशन दिखाता है ना। इसके कोई एग्जांपल याद आ रहे हैं? इन, ऑन, एट, ओवर, अंडर, अबव, राइट। ये सब जो वर्ड्स है, बिहाइंड, बिटवीन, ये सब वर्ड्स जो है दीज आर कॉल्ड प्रेपोजिशंस। देखो, प्रेपोजिशन वर्ड में ही क्या है? पोजीशन वर्ड है प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन में ही पोजीशन वर्ड है, उससे तुमको तुरंत क्लिक होना चाहिए कि वी हैव टू गिव द, ऐसे वर्ड ढूंढना है जो पोजीशन दिखा रहे हो, ठीक है। द पेन इज केप्ट डैश द टेबल। पेन हमने कहाँ रखा है? टेबल पे रखा है, यानी ऑन द टेबल, है ना। या फिर नेक्स्ट एग्जांपल, आई एम प्राउड ऑफ माय कंट्री। तो ऑफ जो है इट इज अ व्हाट? इट इज अ प्रेपोजिशन। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल है, एंड आई हैव पुट अ फ्यू एग्जांपल्स इन दैट लिंक आल्सो। उसको आप जैसे जैसे कंप्लीट करोगे ना, तो आपको बिल्कुल वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। हाँ, जैसे द फ्लोर इज कवर्ड डैश अ कारपेट। तो थोड़ा सा इसमें सोचना पड़ेगा कि फ्लोर कवर्ड है एक कारपेट से, सो विथ अ कारपेट, वहां पे आपको विथ लगाना पड़ेगा। देयर इज अ बिग ट्री डैश माई गार्डन, है ना। तो क्या होगा? इन माई गार्डन। तो प्रेपोजिशन सॉल्व करने के लिए ना, सबसे पहले वो सेंटेंस को इमेजिन कर लेना, थोड़ा सा हो सके तो उसको हिंदी में बोल के देख लेना वो सेंटेंस को, देन यू विल नेवर मेक अ मिस्टेक इन प्रेपोजिशंस, आई एम श्योर। एंड वन एग्जांपल वी कैन से, आई पोर्ड कॉफी डैश माई कप। मैंने अपने कप में कॉफी डाला। तो कप में, बिकॉज वी इंसर्टेड इनसाइड, है ना, अंदर जाता है ना कॉफी, अंदर कप के अंदर, सो वी विल राइट इनटू, है ना। इनटू हम क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज वी हैव पुट इट इनसाइड द कप, सो हम बोलते हैं इनटू। लास्ट, द सेकेंड लास्ट टॉपिक इज कंजंक्शंस। इतना समझा सबको? एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स, नाउन्स, प्रेपोजिशंस, प्रोनाउंस, ये सब I hope it is clear to all of you. Verbs. Now coming to conjunctions. Junction क्या होता है? Joining, है ना। Junction बोलते हैं ना, भुसावल जंक्शन। तो it is what? It is the joining, जहां से कुछ एक हम कुछ join करते हैं, दो पार्ट ऑफ सेंटेंस को जो वर्ड join करता है उसको हम बोलते हैं जंक्शन, कंजंक्शन। ओके, सो कंजंक्शंस भी 2-3 टाइप्स के होते हैं, हाँ। बट उसमें भी ना जाके अगर हम सिर्फ 2-3 एग्जाम्पल सॉल्व कर ले यहाँ कंजंक्शन से रिलेटेड,
तो तुमको बिल्कुल याद आ जाएगा. दिस टॉपिक इज, यू हैव बीन टॉट दिस टॉपिक मेनी टाइम्स, है ना. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू गो फॉर अ हाइक डैश आई हैव टू गो टू वर्क टूडे. इसका मतलब क्या है, मुझे जाना है हाइक पे, लेकिन मुझे आज काम पे भी जाना है. यानी लेकिन जो वर्ड है, इट इज व्हाट, बट जो वर्ड है, इट बिकम्स द कंजंक्शन. आई एम नॉट गेटिंग गुड ग्रेड्स डैश आई स्टडी एवरी डे. मुझे अच्छे ग्रेड्स नहीं मिल रहे हैं, क्यों, जबकि मैं रोज पढ़ाई करता हूं. तो वो जो जबकि वर्ड है, इट इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड दो, है ना. दो आई स्टडी एवरी डे. सो एज ये जो वर्ड्स है जो एक पार्ट ऑफ सेंटेंस को दूसरे पार्ट ऑफ सेंटेंस से जोड़ते हैं, उसको हम बोलते हैं कंजंक्शन. अनदर एग्जांपल, शी वाज बोथ टायर्ड एंड हंग्री येट शी ट्राइड हर बेस्ट टू फिनिश द वर्क. वो बहुत हंग्री थी, टायर्ड थी, फिर भी उसने कोशिश की कि काम कंप्लीट करे. तो जो येट, ये जो वर्ड है, इट इज अ कंजंक्शन. Conjunctions is clear, I hope. And now the very last topic is interjections. Interjection कुछ ऐसे words होते हैं जो बहुत हमको एक sense of feeling कुछ express करें. Oh, ah, hurray, ouch, ये सब जो words होते हैं ना, these are called interjections. अभी इतना तो अब हमको देख के ही समझ में आता है that oops कहाँ यूज करना, ouch कहाँ यूज करना. आउच यानी हमको दर्द हुआ तो हम आउच यूज करेंगे. उप्स यानी हमसे कोई गलती हो गई, कुछ गिर गया हमारे हाथ से, तो उप्स यूज करेंगे. इन द सेम वे, ओ, इफ यू से ओ, इट मींस दैट वी आर क्वाइट सरप्राइज्ड. ओ, यू हैव कम, है ना. तो ओ हम कहाँ यूज करते हैं, वेयर वी हैव टू शो सरप्राइज. या फिर अगर हमको बोलना है तो इज फॉर सम पेन और समथिंग सैड, राइट. सो अगर एक एग्जांपल मैं आपको दूं कि डैश आई हैव ड्रॉप्ड द ग्लास, यानी जैसे हम बोलते हैं अरे मेरे हाथ से ग्लास गिर गया. सो फॉर दिस विच इंटरजेक्शन विल यूज, उप्स. ठीक है. नाउ अनदर एग्जांपल, डैश नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाट यू मेंट. तो अगर हमको इसको हिंदी में बोलना है तो हम क्या बोलते हैं, अच्छा ये था, आप ये बोलना चाहते थे. तो जो अच्छा है उसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ओ, राइट. या फिर अगर हम कोई मैच जीत गए हैं तो हम लिखेंगे डैश वी हैव वन द मैच. तो वहां पे हम डैश में क्या लिखेंगे, hooray, we have won the match. Okay, so with this we have completed parts of speech also. Parts of speech का हम quick revision लेंगे. इसमें 8 थे: nouns, pronouns, adjectives, adverbs, verbs, है ना, prepositions, conjunctions and interjections. So I hope कि ये सभी को पार्ट्स ऑफ स्पीच हमको थोड़ा स्पीडीली इसलिए जाना पड़ा क्योंकि ये ऑलरेडी इतना तुमने पढ़ा हुआ है कि सिर्फ एक याद दिलाने की देर है. एंड यू विल बी एबल टू रिमेंबर. आई एम श्योर आफ्टर यू सॉल्व दोज एग्जांपल्स व्हिच आई हैव गिवन इन द चैट बॉक्स, है ना, एक लिंक है. आई होप ऑल ऑफ यू हैव कॉपीड दैट लिंक. वो कॉपी कर लो क्योंकि अभी हमारा मीटिंग तो खत्म हो जाएगा, बट दैट लिंक if it is with you, you can paste it anywhere and it will open up and there you will get this topic ready made. ये पूरा टॉपिक तुमको वहां ओपन हो जाएगा. आर्टिकल सॉल्व करोगे, एंड से रिलेटेड भी है, द से भी रिलेटेड है, पार्ट्स ऑफ स्पीच से भी रिलेटेड है. सो इट विल बी क्वाइट हैंडी फॉर यू एंड सो दैट लेटर ऑल्सो यू विल बी एबल टू गेट दिस टॉपिक इजिली, है ना. तो ये टॉपिक से रिलेटेड सब कुछ मैंने उस एक गूगल ड्राइव के लिंक में डाल दिया है. So I hope all of you had a good time and you were interested in this topic. So thank you, organizing committee, for this golden chance given to me. And please now I just declare that my session is over. So please carry on. Thank you so much, ma'am. It was indeed a very informative session. Thank you so much. We are sure that the students will immensely benefited through your session. Thank you so much. This was the last session of the series. For valedictory, we have among us Dr. Urmila Dabir Madam. It is an honor to introduce Dr. Dabir Madam to the students. Madam has extensive experience of 34 years in the field of teaching. Many national and international university awards and recognitions are to her credit for her valuable contribution to the field of education. Madam has worked on many committees of the university on various significant capacities also. She is the backbone of various activities conducted for the benefit of the students. Madam is NAC assessor also
On behalf of the organizers, I request Dr. Dabir Madam to address the students on this occasion. Over to you, ma'am. All the principals of the coordinating colleges, the guest speaker today, Suman, and dear students. Collaborations have been a part of some of the colleges which are there today, even before the pandemic time. Because we belong to small colleges and we know the limitations, and therefore pouring in the resources was the important thing for us. But after pandemic, this has become a necessity. And we get good response in collaboration and the online teaching that we are taking. Because many students are working and they can have their own time to look into the lectures that are delivered and take the benefit of that. I think students are the most important stakeholders for any college, because without students, we have no meaning. I also urge the students that they should take the most of the benefit that is being rendered to them through these classes. These classes are for their benefit. And there are so many teachers from different colleges who join this and give their knowledge to you. So it is for the end that the students have to take benefit of that. Learning language is must for communication. It can be your mother tongue or it can be the foreign language like English. And for that communication, you should read, you should write, you should develop your listening capacity, and you should also know how to speak. Because if you do all these things, then you will be able to speak. We have seen that students lack in communication skills. Whenever there are interviews or something like that, they know everything, but they don't know how to put forth all these things. So I think it is time that they have to take it seriously, and most of the students should come forward, learn, write, speak. Reading is very necessary because nowadays the habit of reading is dying out, which is necessary, and you should read whatever you get hold of. And I am thankful to all the resource persons who have given their time and who have given whatever is beneficial for the students. I also thank my dear friend Usha for taking so much of pains every time, organizing and putting forth all these important things for the students. So once again, thank you very much and all the best. Thank you so much, ma'am, for your words of appreciation and motivation. Your guidance will be of great use to all the students. Thank you so much. Thank you, ma'am. Here, I would like to express my gratitude to Dr. Usha Sakure, ma'am, Principal MANOHARRAO KAMDI Mahavidyalay, who is the main force in organizing this lecture series. Dr. Pranoti Chakravarti, ma'am, President of CLIC, and Dr. Urmila Dabbe, ma'am, who are always sources of inspiration to many of the students and the faculty as well. I'm thankful to them also. I'm thankful to Dr. Shraddha Naidu, ma'am, Principal, Dayanand Kanya Mahavidyalay. Special thanks to the organizers of this lecture series, Dr. Meenakshi Vasnik, madam, Dr. Sujata Chakravarti, ma'am. I extend my gratitude to all the resource persons, Dr. Meenakshi Kulkarni, Dr. Kanchan Mohoril, Dr. Sujata Chakravarti, Dr. Dipti Thakre, Dr. Renuka Roy, Dr. Vaishali Meshram, Dr. Amol Mende, Dr. Megha Ramteke, Dr. Meenakshi Vasnik, Dr. Suman Keswani, ma'am, for their sessions. Thank you to all the dear students for making this lecture series successful with your great response. Thank you so much. Thank you, Suman madam. Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, Suman ma'am. Thank you, Madhvi. Thank you, Vas ma'am. Thank you, ma'am. All of you have done a great job. Thank you so much. See you all in another session also. Okay. Yes, ma'am. Thank you so much. Yes, ma'am. Sure, ma'am. Bye. Take care. Okay. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye.